Let's move to our okay. Bismillahirrahmanirrahim. We had started chapter number 5, which is about the design with root locus, and in that context, we have explored the cases of adding and cancelling poles and zeros, and we had seen the effects on root locus and consequently on performance specifications. We have also observed the cases of approximate cancellation of zeros and discussed the improvements in performance specification. And now we are formally moving towards generalized compensator design. And here we will be investigating how each compensator affects the dominant pole and how we will be getting our required performances. Now, the most important thing is written on your screen that if you are interested in designing a control system using root locus method, the most important thing is that the person who is doing that, he should understand the relationship between the root locus and resulting time responses कि किस तरह से dominant poles जो हैं वो affect कर रहे हैं आपके performance specifications को. And when we are talking about the performance specifications, these are the rise time, settling time, overshoot और ये सारे performance related issues हैं. आपकी steady state errors के मामलात क्या हैं, चाहे वो ramp error हो या आपकी स्टेप एरर हो. तो ये सारी चीजें जो हैं इनको रूट लोकस के साथ एसोसिएट करना, रिलेट करना जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन विद द रूट लोकस. So we start our discussion with an uncompensated system. Anyone sitting in the class who can say कि uncompensated system हमने क्या define किया हुआ है? मेमन? CR? ईशा? बेटा यस नो तो कर दो. सर के नंबर होगा सर जिसमें GC ऑफ S ना हो. GC ऑफ S जो है जो K हो, सिंपल प्रोपोर्शनल कॉम्पनसेटर जो है उसको हमने कहा था अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम, बिकॉज वी विल बी लुकिंग एट सम अदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसमें जीरोस एंड पोल्स जो है हम और ऐड कर रहे होंगे या कैंसलेशन कर रहे होंगे. तो हमने कहा कि जिसमें सिर्फ K होगा GC ऑफ S, कंट्रोलर पैरामीटर जो है वो जस्ट K रखेंगे जिसमें हम, दैट वुड बी नॉमिनेटेड एज अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम. अच्छा जी, क्लियर हो गई बात. ये जो K is equal to KU लिखा हुआ है, it means KU is U is for uncompensated system. अच्छा, टाइप 1 सिस्टम कौन से होते हैं? क्या हो गया है? सर जिसमें पोल 0 पे एग्जिस्ट करता हो, जिसमें आपके पास TE के अंदर आपका जो पोल है वो S is equal to 0 रूट जो है वो मौजूद हो. So we are starting our discussion with an uncompensated system which has a proportional gain parameter K as the only compensating device, and that's a type 1 system. For a type 1 system, we are assuming that our plant transfer function or plant transmittance जो है वो हमारे पास ये है, omega n square divided by Ku. Ku is, in fact, we have assumed that K is equal to Ku. And the transfer function of this system is this one. So how you will be getting your transfer function? You will be using K is equal to Ku here. GPS is given to you. And if you are interested in knowing the T of S, that would be nothing but
GCFS, GPFS, as it's a unity feedback system, so it's 1 plus GCFS GPFS, and as a result of that you get this transfer function with which you are quite familiar with. ठीक है, zeta क्या है इसमें? इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में आपको नजर आ रहा है zeta, ओमेगा n, ये क्या चीजें हैं? Zeta is the damping ratio, and omega n is the natural frequency. Okay, now for the damping ratio between 0 and 1, this characteristic polynomial can be written in this form, because when आपका जो damping ratio है between 0 and 1, you will be having an underdamped system, and your poles will be located at complex conjugate positions. So complex conjugate locations पे अगर आपके पास मौजूद हैं तो इस बात का मतलब ये है there is some sigma, this is j omega, this is sigma, और मेरे पास अगर complex conjugate location पे पोल पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि I have got some sigma and I've got some omega. So this one, that's my omega, and the imaginary axis, and that's my sigma. So sigma plus j omega, so the poles are located S1 जो है, suppose this is S1, this is S2, so S1 is equal to minus sigma plus j omega, and S2 is at minus sigma minus j omega. So that's the situation. So the characteristic equation, either you write it in this form, in the form of damping ratio or natural frequency, or you write it in terms of sigmas and omegas, you can write it. ठीक, any questions? बेटा मेरी आवाज आ रही है? No, sir. Yes, No sir. question. So now let's see this. ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं इसी सिस्टम के, जनरलाइज सिस्टम है एक हमारे पास, उस सिस्टम के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं वो ये दिखाए गए हैं, बॉक्स की फॉर्म में आपके सामने मौजूद है. अच्छा, और ये ओमेगा एन है. ओमेगा एन इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, and zeta is actually the ratio between sigma and omega n, which is the angle cosine of this angle. And so अब अगर आप इस तरफ आए, इसी रूट लोकस पे आए, तो दिस इज टेलिंग यू के पाथ ऑफ द कांस्टेंट जीटा, यानी अगर आपके पास ओमेगा एन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं तो, और जीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो आपके जो पोल्स हैं वो इस रूट पे चलेंगे. सो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर पोल्स हैं तो वो इन जगहों पे चल रहे होंगे. और अगर मेरे पास कांस्टेंट ओमेगा एन है, बिकॉज ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल. तो इस बात का मतलब यह है कि फिर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा अगर जीटा, तो वो इस सेमी सर्कुलर रेडियस पे वो मूव कर रहे होंगे. जब जीटा 1 है तो वी आर हेयर, जब जीटा 0 है तो वी आर हेयर. जीटा 0 का मतलब क्या है? दैट वी हैव, जी एनी आइडिया? अगर जीटा 0 हो तो क्या होता है? जीटा इज इक्वल टू 0 कौन सा सिस्टम होता है? अनडैम्प्ड सिस्टम होता है. गुड. जीटा इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच में हो तो दैट्स एन Underdamped. It's an underdamped system. Very good.
और अगर जीटा ग्रेटर देन 1 हो तो इस बात का मतलब है दैट्स एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, और जीटा इज इक्वल टू 1 हो तो इस बात का मतलब है दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। सो आपके पास जो ओमेगा एन सर्कल पे आपके पास पोल्स जो है मूव कर सकते हैं। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, इधर आप कांस्टेंट रखें जीटा को और इंक्रीज करें ओमेगा एन को, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ओमेगा एन जो है वो कांस्टेंट है और इंक्रीज जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो दैट्स द सिचुएशन where the location where the possibility of our poles is. Any questions regarding this? So these are the things which you already know. I'm just repeating these so that what is coming next वो आप लोगों के लिए समझना जो है वो आसान हो। Meman, are you sitting? Nangyal, any question beta? Yes. Irfan? Okay, now in fact, we want to relate the movement of our closed loop poles, as we are saying that हमारे closed loop poles जो हैं इस portion में move कर सकते हैं। तो मैं इस movement को relate करना चाहता हूँ with time response like rise time, settling time, etc. And now with the movement of closed loop poles, the rise time and settling time are changing, as we know from our previous discussions. And the relationship is given by these figures, and you have seen these figures in chapter number 2 perhaps. We have already discussed about that. So according to these figures, for a constant damping ratio, the rise time and settling time are inversely proportional to omega n. Like suppose अगर मैं कहता हूँ कि zeta is equal to 0.7 है, तो zeta is equal to 0.7 पे suppose आपके पास the product, because that's the normalized product omega n tr rise time और omega n का जो product है that is plotted here. So at this location 0.7 पे अगर आप देखें तो आपको जो omega n tr नजर आ रहा है that is equal to 2. So अगर मैं tr की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं that is 2 divided by omega n. So what we are saying कि for a constant damping ratio, if damping ratio is constant, the rise time and settling time are inversely proportional to omega n. So this relationship is given here. So जो भी omega n की वैल्यू होगी that would be inversely proportional. omega n बढ़ता चला जाएगा तो आपका rise time जो है वो कम होता चला जाएगा। विजुअलाइज करिए ओमेगा एन बढ़ने का क्या मतलब है, अगर पोल्स जो हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, और इस बात का मतलब यह है कि आपका राइज टाइम जो है वो कम होता चला जा रहा है। सिमिलरली इफ वी कम ओवर हियर, और अगर आप 0.7 पे देखें तो दैट वुड बी समवेयर ओवर 0.3 पे देख लें, बिकॉज सीधी लाइन है। 0.3 पे अगर हम देखें तो दिस इज द सिचुएशन। 8 पे आपको मिल रहा है ओमेगा एन टी एस, और टी एस अगर आप देखेंगे इस केस में तो टी एस विल बी इक्वल टू 8 divided by omega n. Again the relationship is inversely proportional between settling time and omega n. Your question please. Alina, Aisha, Isha. जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। वैसे मैं क्लास में हूँ। हाँ जज़ाकल्लाह, ठीक है, थैंक यू। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर ये जो सेकंड फिगर है इसमें भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? दोनों में है। अब ये देख लीजिए, सपोज मैंने इसीलिए आपको कहा है ना, सपोज 0.4 पे देखते हैं। 0.4 पे ये वाली चीज है ना, थोड़ा सा 0.8 से नीचे आ रहा है। सो TFS की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। TFS और ओमेगा n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर अ कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो। अगर जीटा इज कांस्टेंट, in that case TFS and omega n, TFR and omega n, they are inversely proportional. Have I answered your question? Yes sir. Okay.
चलें, अब ये आपके सामने एक सिचुएशन मौजूद है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डैम्प्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जीटा जो है दैट इज 0.5 और ओमेगा एन जो है वो 2 है। सो इस केस में अगर आप देखें 0.5 पे आपके पास इट इज अबाउट 1.6, सो 1.6 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करना चाह रहे हैं विच इज टी राइज टाइम की बात हो रही है, टी आर इज इक्वल टू 1.6 divided by 2, so that's equal to 0.8 seconds, which is shown here. So that's the rise time जो कि हम यहाँ से find out कर सकते हैं if we know the damping ratio and the omega n. So for a constant damping ratio, the rise time is inversely proportional to omega n, which we had already said. अब आपने एक सिस्टम के स्टेप रेस्पॉन्स के साथ भी उसको देख लिया। इसी तरह से when we move forward, the settling time आप यहाँ से देख सकते हैं again for zeta is equal to 0.5 पे अगर आप देखते हैं तो it is about 5.6 kind of thing, और 5.6 divided by 2 that would be equal to 2.6, ठीक है। और again it is showing that for a constant damping ratio the settling time is also inversely proportional to omega n. Similarly अब क्या किया है यहाँ पे, यहाँ जीटा की वैल्यू तो सेम रखी है, ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो डबल कर दी गई है। सो 1.6 डिवाइडेड बाय 4, नाउ दैट इज 0.4 सेकेंड। एंड सिमिलरली आपने यहाँ पे आपके पास वो 1/4 हो गया, 5.6 था मेरा ख्याल है, 5.2 था या 5.2 था, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 1.3 सेकेंड हो गया। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज स्टेप रेस्पॉन्स एंड डैम्पिंग रेशियोज? जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? जी जी बोलें बेटा। omega n is both inversely proportional with settling time and rise time. यस, Okay, sir. यही बात हम कर रहे हैं ना, यही बात कर रहे हैं ना। फॉर ए कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो द राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एन। यानी अगर मुझे राइज टाइम फाइंड आउट करना है, आई विल गो टू दिस काइंड ऑफ ग्राफ फॉर सम सिस्टम एंड आई विल बी सीइंग दिस प्रोडक्ट ओमेगा एन टी आर, अगर राइज टाइम फाइंड आउट करना है, एंड देन फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा एन आई विल बी गेटिंग टी एफ आर फॉर दिस कर्व। यानी एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। क्लास हो रही है। Ji, Isha, have I answered your question, beta? Yes, sir. Okay. Any other question from any other person? Irfan, are you sitting, bacha? Okay. In fact, that's a kind of revision. We had already seen it in these figures and these calculations in chapter number 2 and 3. Okay, ji. So we conclude that if the damping ratio is fixed and we want to reduce rise time and settling time, then what we will be doing? A root locus design must cause omega n and therefore relative stability. Relative stability क्या होती है? That's the distance from the vertical axis to the dominant closed loop poles to be as large as possible. As we are saying that it's inversely proportional. So इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे राइज टाइम और सेटलिंग टाइम को रिड्यूस करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी आर सम वैल्यू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आपके पास ओमेगा एन है, और इसी तरह से सेटलिंग टाइम भी सम वैल्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा एन है। तो इस बात का मतलब है इफ आई हैव टू रिड्यूस दिस सेटलिंग टाइम एंड राइज टाइम, इस बात का मतलब यह है कि मुझे अपना ओमेगा एन को इंक्रीज करना होगा, और ओमेगा एन को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मेरी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो मैं बढ़ा रहा हूं। और रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या चीज होती है? डोमिनेंट पोल्स जो हैं आपके, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द इमेजिनरी एक्सिस। अगेन these are the concept which we have already done, but the repetition of this just to revise it. Any confusion, any question?
सो जितना ज्यादा मेरा डिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट पोल्स का, क्लोज लूप पोल्स का वो बढ़ता चला जाएगा इमेजिनरी एक्सिस से, मेरी रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी एंड कंसिक्वेंटली मेरा राइज टाइम और सेटलिंग टाइम जो है वो इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि मेरा राइज टाइम भी कम होता जाएगा और सेटलिंग टाइम भी कम होता चला जाएगा। Any question, any confusion? No sir. Great. अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा ओमेगा एन अगर कांस्टेंट है एंड वी वांट टू रिड्यूस द सेटलिंग टाइम, इन दैट केस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दिस मैटर कि इन दैट केस आपका जीटा जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0.707। इसका मतलब है द एंगल बिटवीन, ये जो एंगल है आपका वो 45 डिग्री के एंगल पे अगर हो आपका दिस एंगल, तो आपका जो जीटा है दैट वुड बी 0.707। और इस केस में आपके पास जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है दैट वुड बी मैक्सिमम फॉर अ कांस्टेंट ओमेगा एन। और इस केस में आप जो है जो आपका सेटलिंग टाइम और राइज टाइम है वो आपके पास मिनिमम होंगे। सो मिनिमम सेटलिंग टाइम कैन बी अचीव्ड by selecting zeta is equal to 0.707. So इस केस में अगर आप देखें तो unit step response of a second order damped system for zeta is equal to 0.5 and omega n is equal to 2 that we are orderly calculated, that is ts is equal to 2.6 second. और अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी zeta जो है that is changed from 0.5 to 0.707, omega n को constant रखा गया है। तो इस केस में मेरे पास सेटलिंग टाइम जो है वो क्या हो गया, इट इज 1.5 सेकेंड्स। सो दोनों केसेस में दो पैरामीटर्स थे हमारे पास, एक जीटा था एक ओमेगा एन था। अगर जीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो ओमेगा एन को हमें बढ़ाना पड़ता है फॉर गेटिंग द सेटलिंग टाइम एंड राइज टाइम रिड्यूस्ड। और इसी तरह से अगर ओमेगा एन कांस्टेंट है तो फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीटा को या जो हमारी डैम्पिंग रेशियो है दैट शुड बी इक्वल टू 0.707 टू गेट द मिनिमम सेटलिंग टाइम। Any questions? No sir. Okay. और इसी तरह से अगर मैं सपोज इसी पर्टिकुलर केस में अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूं अपने सेट जीटा को, if I take zeta is equal to now suppose 0.9 in the or omega is equal to 2, तो इस केस में it is not it is 0.9. okay, तो इस केस में क्या होना चाहिए, what you expect कि ts क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? सर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए because the optimum value is being achieved at zeta is equal to 0.707। मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है सेटलिंग टाइम की। जैसे ही आप फिर 0.707 से बढ़ाना शुरू करेंगे आपका सेटलिंग टाइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड हियर वी आर गेटिंग द सेटलिंग टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स हियर फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दोनों केसेस जो हैं फॉर ओमेगा एन और जीटा के हमने चेक कर लिए। तो सिंपल डिजाइन स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, we will be maximizing the relative stability of the dominant poles when that is possible, or we will be making the damping ratio 0.707 for the dominant poles when that is possible. So जो भी चीज हमारे लिए पॉसिबिलिटी हमारे सामने आएगी, या तो हम अपने ओमेगा एन को बढ़ाएं, ओमेगा एन को बढ़ाने का मतलब ये है कि आई एम इनफैक्ट relative stability of the dominant poles में इंक्रीज कर रहा हूँ। इस केस में भी मैं अपना सेटलिंग टाइम और राइज टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी डैम्पिंग रेशियो को 0.707 कर दूं। इस केस में भी मैं अपने सेटलिंग टाइम को जो है वो रिड्यूस कर सकता हूँ। एंड इनफैक्ट 707 पे 0.707 डैम्पिंग रेशियो पे आई विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ माय सेटलिंग टाइम। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स, प्लीज आस्क। सर क्लियर है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गई है आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड। आपकी असाइनमेंट जो भी रूट लोकस की हो, जब भी आप कभी रूट लोकस को सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपने जो एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी उसमें भी आपने देखा होगा
देखिए अगर तो आपके पास असिम्पटोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इस बात का मतलब ये है कि आपने कहा कि n-m जो है इज इक्वल टू 0 है, नो असिम्पटोट्स, दैट्स इट। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। नो asymptotes, and if there are no asymptotes, the next step is no asymptotes angle। फिर दोबारा वो कैलकुलेशन करना और ये सारी चीजें लिखना और फिर उसके बाद कहना कि एंगल जीरो, नहीं है जरूरत इस बात की। आप सिर्फ लिखिए असिम्पटोट नहीं है तो असिम्पटोट एंगल्स नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपके पास सेंट्रोइड भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी उसमें असाइनमेंट में सेंट्रोइड इज इक्वल टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, बिकॉज नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स n माइनस m 0 है, तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय 0 वो इंफिनिटी हो रहा है। इट इज नॉट इंफिनिटी, इट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये चीजें थी इस चीज से रिलेटेड। और दूसरा ये है कि जब आप बनाएं अपना, सपोज ये सिचुएशन थी, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई अगर हम बना दें, इस तरह की सिचुएशन है जो आपकी प्रोबेबली असाइनमेंट इस तरह की थी, गिव द वैल्यूज ऑफ k, so k is approaching to 0, k is approaching to 0, what's happening at the breakaway point। अब आपके पास ये breakaway point है, तो you are moving towards here, you are moving towards here, arrows बनाएं properly। जब आपका breakaway point है वहां पे लिखिए k की वैल्यू क्या है, that's important because you are seeing the effect of this k। और उसके बाद फिर आप मूव कर रहे हैं तो ये एरो इज इंपॉर्टेंट, और इस पर्टिकुलर के यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू क्या है और किस तरह से ये मूव कर रहा है। सो दैट शुड बी द एक्चुअल रूट लोकस, जिस तरह से आपने उसको बनाना है। केज आर इंपॉर्टेंट, आपने बताना है कि के क्या है। इनफैक्ट के की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 0 बेटा k इज इक्वल टू 0 पे आपका ओपन लूप पोल से स्टार्ट करता है, और k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर आपके पास दो जीरोस जैसे इस केस में मौजूद है, तो k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो ओपन लूप 0 पे आपका जो रूट लोकस है वो एंड करता है। ठीक है, मेरा बच्चा हाँ ना ही बोल दे। यस सर। चलेंगे, ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब डिफरेंट हमने कॉम्पनसेटर्स को डिस्कस करना है या कंट्रोलर्स को डिस्कस करना है, तो वी विल कंसीडर दिस एग्जांपल। प्लांट ट्रांसमिटेंस जो है वो आपके सामने मौजूद है, GPFS। इनफैक्ट द सिस्टम इज समथिंग लाइक दैट। Okay, so that's my system. ओके जी, दिस इज जीपी प्लांट का ट्रांसमिटेंस ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आपके सामने मौजूद है। एंड व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, इस पर्टिकुलर केस में व्हेन वी आर एज्यूमिंग वी आर स्टार्टिंग विद एन अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम। सो इस केस में आपके पास क्या सिचुएशन है, GCFS क्या होना चाहिए कंट्रोलर पैरामीटर, दैट वुड बी इक्वल टू k, और GPS जो है वो आपके सामने गिवन है। सो इस केस में आपका n क्या है और m क्या है, सर 3। n is equal to 3, m is equal to 0, open loop poles are given here, s is equal to 0 पे एक पोल रखा हुआ है, s is equal to -2 -j पे है, और s is equal to -2 plus j पे है। so these are my poles। अगर आप देखें तो ये मेरे पास ओपन लूप पोल्स जो हैं ये रखे हुए। ठीक,
नाउ फॉर इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ के, ऑफ कोर्स जब मैं, कोई है यहाँ पे जो बताए कि रूट लोकस की मूवमेंट क्या होगी? वैसे तो नजर आ रहा है, लेकिन आपको क्या समझ आ रही है कि रूट लोकस कैसे मूव करेगा? फिर कोई एक भी बंदा क्लास में नहीं है जिसको ये अंदाजा हो रहा हो? सर एसिम्पटोट्स की तरफ सर मूव करेगा सर। बेटा पहले तो ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट करें ना। स्टार्ट तो यस सर। एसिम्पटोट्स की तरफ मूव करने से पहले शुरू तो करें ओपन लूप पोल से। ये आपके पास ओपन लूप पोल्स रखे हुए हैं, ठीक है? ये जो हमने डिस्कस किए हैं ये वाले यहां से हमें मिले। अब आप अपना रूट लोकस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए जैसे जैसे के की, यहाँ पे के की वैल्यू 0 थी ओपन लूप पोल से, जैसे ही के ने स्टार्ट किया, अब देखिए मैं पूरा रूट लोकस डिजाइन अब नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम around more than 2 weeks on design of the root locus. So just discussing what's happening कि देखिए ये चलना शुरू करेगा इस तरफ और ये चलना शुरू करेगा इस तरफ। दिस इज योर ब्रेक इन पॉइंट। इस ब्रेक इन पॉइंट पे क्या होगा कि एक जो ब्रांच है वो इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी और दूसरी जो है वो इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी। वाई? क्योंकि सर ब्रेक इन पॉइंट है। ब्रेक इन पॉइंट है और आपके पास 3 असिम्पटोट्स हैं। सो 3 असिम्पटोट्स में से एक तो k इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए चल पड़ा और इस तरफ मूव कर गया, वो इन्फिनिटी की तरफ 180 डिग्री पे। और फिर दूसरा जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और इस दौरान ये भी इधर मूव कर रहा था। सो एट सम वैल्यू ऑफ k विच इज द ब्रेक अवे पॉइंट, ये स्टार्ट करेगा इधर ऊपर की तरफ और ये स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक? सो दैट्स योर रूट लोकस। एग्रीड? यस सर। ओके ग्रेट। चलिए मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ। नाउ लेट्स मूव फॉर इंक्रीज्ड के, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना k इज इक्वल टू पर्टिकुलर 3 पे, अब ये अब जितनी भी आपको एग्जांपल नजर आएंगे ये आपको क्लोज लूप पोल्स जो है ना वो आपको फॉर सम वैल्यू ऑफ k अगर आप देखना चाहें तो वो उसने आपकी बुक ने इस तरह से इंडिकेट किया है। सो दीज आर द क्लोज लूप पोल एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k। तो k इज इक्वल टू 3 पे पोल्स यहाँ पड़े हुए हैं। जो यहाँ से जो अंदर आया था, जो यहाँ से मूव किया है, वो k इज इक्वल टू 3 पे उस पोल की लोकेशन ये है। और इसी तरह से k इज इक्वल टू 3 पे ये जो इन असिम्पटोट्स के साथ साथ आपका लोकस चल रहा है, तो पोल्स की लोकेशन जो है वो ये है। नाउ फॉर इंक्रीज्ड k, द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द डोमिनेंट पोल्स डिक्रीजेस, ऑफ कोर्स डिक्रीज कर रही है आपकी डैम्पिंग रेशियो जो है from 1 to 0 and the ramp error coefficient is given as ks जो है। आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं रैम्प एरर क्या होता है, रैम्प एरर आपका है जब आपके पास इनपुट जो है वो 1/s² हो, या तो आप TE(s) के थ्रू उसको फाइंड आउट कर लीजिए और TE(s) के साथ आप लिमिट s टेंड्स टू 0 s TE(s) 1/s² के साथ आप फाइंड आउट कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग योर एरर। और यू फाइंड द कोएफिशिएंट एरर k1 जिसको हम रैम्प एरर कोएफिशिएंट्स कह रहे हैं, और उसके बाद 1/k1 जो है दैट वुड बी योर एरर जो है आपकी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे k इंक्रीज कर रहा है रैम्प एरर कोएफिशिएंट्स जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज k1 इज इक्वल टू k/5। और रैम्प एरर कोएफिशिएंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो एरर जो है दैट इज इनफैक्ट इक्वल टू 1/k1, जो कि रैम्प एरर की हम बात कर रहे हैं। सो वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है? ऐसे ही है ना, k इंक्रीज कर रहा है, k1 जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपकी रैम्प एरर जो है वो भी वो डिक्रीज कर रही है। नाउ वी नीड टू गेट zeta इज इक्वल टू 0.707 बिकॉज वी नो के 0.707 पे हमारी जो डैम्पिंग रेशियो है वो हमें मिनिमम सेटलिंग टाइम दे देगी फॉर अ गिवन ओमेगा n। अब जरा देखिए हो क्या रहा है। अब ये डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो की गई हैं।
इसमें अगर आप देखें तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज दिस वन। इस सिस्टम का अगर जीसी इसको के कर दूं और जीपी ऑफ इसको दिस आई शुड राइट इट लाइक दिस, सो इन दैट केस मेरा ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट वुड बी इन दिस फॉर्म। नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हमारे रूट्स चेंज होते जा रहे हैं। एज यू नो दिस इज रूट लोकस, यही चीज है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका बदलता चला जा रहा होता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, और अकॉर्डिंगली अगर मैं इसी को कंपेयर करूं इस चीज के साथ जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में है, तो इन दैट केस आपकी जीटा और ओमेगा एन भी चेंज होते चले जा रहे होंगे। सो के की वैल्यू 2 से लेके 3 तक यहाँ इस टेबल में गिवन है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू आर सीइंग कि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्योंकि के की वजह से चेंज होता चला जा रहा है, तो आपके रूट्स जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं, एंड रिजल्टेंटली योर जीटा एंड ओमेगा एन आर चेंज। तो इस टेबल को जरा आप गौर से देखें और इस रूट लोकस में देखें, यानी जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है आपके रूट्स की लोकेशन चेंज होती जा रही है। वी नो इट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस के क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो चेंज होते चले जाएंगे, एंड कंसिक्वेंटली हमारा जीटा और ओमेगा एन जो है वो भी चेंज होते चले जा रहे हैं। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस टेबल, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेबल? नो सर। अच्छा, और इसमें अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर केस में फ्रॉम के इज इक्वल टू 2 to 3 जरा गौर अगर हम करें तो आपके पास इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जो ओमेगा एन है वो इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट 1 से लेके 1.10 तक जा रहा है। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए के इज इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है। के इज इक्वल टू 3 पे जीटा जो है दैट इज ऑलमोस्ट 0.707। ठीक है, 0.707 की वैल्यू जो है वो आप अचीव कर रहे हैं। So 0.707 का क्या मतलब है? K is equal to 3 is the thing, because we were for an uncompensated system we were looking for the value of K. K की कौन सी वैल्यू है जिस पे मुझे मेरी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस जो है वो मुझे अचीव हो जाएंगी। So K is equal to 3 is the place जहां पे मेरा जीटा जो है that is 0.707, and जीटा 0.707 का मतलब ये है कि मेरा सेटलिंग टाइम जो है वो मिनिमम है। और फिर इसी पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं देखूं तो मेरा K1 जो है दैट इज इक्वल टू K ओवर 5, और K जो है मेरे पास वो 3 है, सो 3 ओवर 5 इज इनफैक्ट 0.6, और इस पर्टिकुलर जगह पे मेरी जो स्टेडी स्टेट एरर रैंप एरर है, सो नॉट जी स्टेडी स्टेट रैंप एरर, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1.67. So that's the minimum error I will be getting in case of my input is RAM. So as far as uncompensated system design का जहां तक ताल्लुक है इस एग्जाम्पल का, तो that is done. इससे ज्यादा improvement हो नहीं सकती, because if we increase K now, what will happen? We will increase the ramp error, यानी रैम्प एरर हमारी इंक्रीज करना शुरू कर, रैम्प एरर कोएफिशिएंट्स तो हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इफ यू सी दिस, यानी अगर मैं k की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, ऑफ कोर्स मेरा k1 इंक्रीज करेगा और मेरी रैम्प एरर जो है वो डिक्रीज करेगी, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग जीटा, बिकॉज k की वैल्यू 3 से ऊपर जाएगी तो जीटा की वैल्यू इससे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इससे बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर आपका सेटलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। सो एज फार एज दिस सिचुएशन इज कंसर्न, our design for this uncompensated system where we were only looking for the value of k, कि k की वैल्यू क्या है जहां पे मेरी desired specification, suppose I want to have minimum settling time and some minimum value, some value of ramp error, so in that case k is equal to 3, that's the optimum value of k. और अगर इसी पर्टिकुलर जगह पे k is equal to 3 पे if I'm interested in looking at the steady state error, the steady state error will be steps, यानी step input के लिए that would be equal to 0. Why? Because uncompensated system जो है वो type 1 है, और type 1 system के लिए वो आपका जो steady state response है that is always equal to 0. Questions please.
रेस्ट अश्योर कि आपको एक एक चीज क्लियर होती जा रही है, बिकॉज आगे चीजें मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी. सो प्लीज अगर कोई कंफ्यूजन है तो इट्स अ राइट टाइम टू आस्क. जी नंगियाल, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर. जी जरा फिर बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्या किया है हमने, थोड़ा सा रिवाइज करवाइए, रिपीट कर दीजिए. बोल दो यार, कुछ नहीं होता. सर हमने वो देखे कि जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जो के की वैल्यू इंक्रीज करने से तो डंपिंग रेशियो जो है वो मतलब डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, ये हमने सर देखे इसमें. और कोई चीज? सर उसके बाद ये रैंप एरर देख लिया हमने. चले ठीक है. सो दिस वाज आवर डिजाइन फॉर अनकंपनसेटेड सिस्टम. अब पॉसिबल नहीं है to increase K1 for reducing ramping error and also reduce the settling time with this particular compensator, because it's a simple compensator. इसमें सिर्फ आपके पास proportional gain का पैरामीटर है और इसी K को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो फॉर दिस पर्पस, यानी अगर आप कुछ और इसके अंदर चीजें देखना चाहते हैं या मजीद परफॉर्मेंस जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इम्प्रूव परफॉर्मेंस है अगर आपकी रिक्वायरमेंट, तो इन दैट केस वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड जो आपके कॉम्पनसेटर्स हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं. अच्छा, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. सो this is general approach to compensator design. I will be repeating this slide again and again, but before that I'm moving to this slide, which is in fact cascade PI compensation, या इसको हम proportional plus integral compensation या PI controller हम कहते हैं. ट्रांसमिटेंस इसकी जो है वो आपके सामने है. क्या कर रहा है ये? मेमन बैठे हुए हैं? सीआर, ईशा बेटा, this is the transmittance of the controller. Of course this is different from the proportional gain controller जहां पे हमारे पास सिर्फ k होता था. यहाँ पे अब ये k into s plus a divided by s हो गया है. तो ईशा ये बताइए ये कंट्रोलर क्या कर रहा है? सर ये इंटीग्रेटेड है. नहीं, in terms of आपका रूट लोकस की टर्म्स में या लैपलास डोमेन पे ये क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स 1/s की टर्म जो है वो इंटीग्रेट करा रही है टाइम डोमेन में, दैट्स फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है? पोल्स एंड जीरोस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. सर एक पोल और एक जीरो ऐड हो रहे हैं सिस्टम. ग्रेट. s इज इक्वल टू 0 पे एक पोल ऐड हो रहा है, s इज इक्वल टू 0 पे एक पोल है और s इज इक्वल टू -a पे एक जीरो जो है वो ऐड कर रहे हैं, और k जो है उसी तरह से हमारा प्रोपोर्शनल गेन पैरामीटर या कंपनसेटर का जो गेन प्रोपोर्शनल गेन कंट्रोलर है आपका k है, पैरामीटर है. Now the steady state error, when we implement this PI compensation or PI controller or on some plot, so these are the specifications of this compensation system, that steady state errors जो हैं they are greatly improved by this. जो आपकी relative stability है वो reduce कर रही है. ठीक, steady state error आपकी बढ़ रही हैं लेकिन relative stability जो है वो कम हो रही है. अच्छा, अब देखिए कि change in n-m को अगर हम देखें, चेंज इन n-m नहीं है, बिकॉज जितने पहले से n-m जितना था उतना ही रहेगा. एक जीरो ऐड कर रहे हैं, एक पोल ऐड कर रहे हैं,
और इसी तरह से सेंट्रॉइड जो है वो आपका चेंज हो रहा है, एंड वी विल डिस्कस किस तरह से। और सिस्टम टाइप नंबर जो है वो भी चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, एनी आइडिया? सर क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में एक पोल 0 पे ऐड किया है। ग्रेट, s इज इक्वल टू 0 पे पोल ऐड करने की वजह से आप जो है अपना सिस्टम टाइप नंबर जो है वो बढ़ा रहे हैं। सो द कैस्केड प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल जो है आपका, दैट इज PI compensator, that has got the transmittance of the form. We have discussed this side, but it can be written in this form as well, that AP divided by AI over S. So where AP will be equal to K and AI over S will be equal to KA over S. Now the AP term जो है, that is creating an output from the compensator that is proportional to the compensator input. यानी K है तो जो कुछ अंदर से आ रहा है वो K से मल्टीप्लाई करके उसी प्रोपोर्शनल उसको आउटपुट दे रहा है, while the AI over S component जो है, that is creating the output from the compensator, that is integral because of the 1 over S component, that is integral of the compensator input, hence the name PI compensator. ठीक है? So this PI compensator adds a pole at S is equal to 0. We had already discussed this कि S is equal to 0 पे एक पोल डाल रहा है, from here we can see, and S is equal to minus A पे एक 0 डाल रहा है to the open loop transmittance. ठीक? For the purpose of design, अब मेरे पास पहले जो आपके पास uncompensated system था, जो सिंपल अनकम्पनसेटेड सिस्टम था, उसमें हमारे पास जो डिजाइन पैरामीटर था दैट वाज ओनली के। अब हमारे पास डिजाइन पैरामीटर्स कितने हो गए? अब 2 पैरामीटर्स हो गए। लिबर्टी हमारे पास बढ़ रही है। अब के और ए 2 पैरामीटर्स हैं जिनको हम फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन वी कैन चेंज, वी कैन ऑल्टर and to get the required performance specifications. System type number is increased because of the addition of open loop pole at the origin. Steady state error performance improved for stable design. Why we are saying stable design? Because when we had seen last week that when we add a pole at the origin, तो क्या होता है, the performance has the tendency of moving the root locus towards right half plane, and as a result of that आपका system जो है वो unstable हो सकता है for certain values of k. So that's why we are saying yes, the steady state performance is improving, but as far as the system is stable. So system को stable रखना होगा जब आपको steady state improved performance के लिए. There is no change in the number of open loop poles and zeros. Yes, because आप एक जीरो ऐड कर रहे हैं और एक पोल ऐड कर रहे हैं, सो ओपन लूप जीरोस के अंदर n-m जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. Thus the compensated system जो आपका इस PI कंट्रोलर के बाद लगाने के बाद जो आपका compensated system है, that has the same root locus, यानी closed loop system की बात हो रही है, that has the same root locus asymptotic angles as does the uncompensated one. इस ये जो चीज है इसको हम डिस्कस करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है. So centroid of the asymptote will change. For the compensated system आपका जो open loop transmittance GCFS और GPFS किस तरह से हम centroid find out करते हैं? Number of open loop poles minus number of open loop zeros divided by number of open loop poles minus number of open loop zeros. So this is n, this is m. So n minus m, और ऊपर जो है sum of the poles of open loop poles minus sum of open loop zeros. ठीक? So अब आपने क्या किया है? अब आपने कंपनसेटर जो आपका नया है वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? S is equal to 0 पे एक पोल जो है वो बिठा रहा है, और 0 S is equal to minus a पे आपके पास एक जो है वो 0 लेके आ रहा है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अब आपका सेंट्रॉइड जो है वो क्या हो जाएगा? अगर मैं सेंट्रॉइड की इक्वेशन लिखूं तो दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ ओपन लूप पोल्स. ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं. प्लस 0 because we have added an open loop pole at s sigma is equal to 0 or s is equal to 0 minus sum of open loop zeros plus a because आपने एक और a जो है ऐड किया है and divided by n minus m. So as a result of that what will happen?
आपके पास जो सेंट्रॉइड है या जो सिग्मा है दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पोर्शन में बिकॉज जीरो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे फर्क पड़ेगा बिकॉज अब आप शिफ्ट कर जाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा यू प्लस a divided by n minus m. Any confusions regarding this thing, this calculation, where sigma u is the centroid of the uncompensated system. Any question, beta? इब्राहिम, दोनों इब्राहिम। यार what should I do to make you speak? CR, let me check, are you sitting or not? Let me take the attendance in this case. यार 29 लोग बैठे हुए हैं और 29 लोगों में से एक भी बंदा जवाब नहीं दे रहा। अबशार हसन, अलीना खान, आशा सिद्दीका। जी अलीना बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप सुन रही हैं लेक्चर? जी सर। जी जरा कुछ बताएंगी, रिपीट करेंगी हम क्या कर रहे हैं, पीआई कॉम्पनसेटर क्या कर रहा है? सर जी बेटा, आई एम वेटिंग। सर एक मिनट, कैन आई गो थ्रू माय नोट्स प्लीज? बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। जी अलीना बेटा, आई एम वेटिंग। सर आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड ऑल ऑफ अ सडन। चलें, आप कंफ्यूज हैं, चलो छोड़ दें आप। आयशा बेटा आप बताइए। सर इसमें हम एक पोल और एक जीरो ऐड कर रहे हैं। गुड, शाबाश। पोल की लोकेशन क्या है? पोल की लोकेशन क्या है बेटा? सर पोल 0 पे है। पोल 0 पे है और 0 जो है वो किसी पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट पे है, एक माइनस ए पे आपने कर दिया, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड? क्या क्या हो सकता है इस कंपनसेटर के थ्रू? सर इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर है वो इंक्रीज होगा और स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज नहीं होगा, ये आप ये चीज जो है ना आप वेट अ सेकंड, it is steady state performance which is improving, not steady state error which is improving. This is important, इस बात को ज़हन में रखना है। ओके सर, ठीक है। Now this is the situation. It is saying effect on steady state error. Effect जो है that is greatly improved. यानी परफॉर्मेंस जो है स्टेडी स्टेट एरर्स के टर्म्स में वो इंप्रूव कर रही है और रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर रही है, ठीक है। यस सर। ओके, एंड देन वी डिस्कस्ड के आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस जो हैं, प्लीज ऑल ऑफ यू जितने भी 29 लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं प्लीज पे अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कंपनसेशन है और ये जितने भी आपके कंट्रोलर्स हैं
दीज आर काइंड ऑफ ट्रिकी बिजनेस, तो थोड़ा सा आप तवज्जो दे दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना, आपको अगर इस वक्त समझ में ना आए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट के थोड़ा तवज्जो दे दें। ओके, देन वी डिस्कस्ड कि किस तरह से आपका सेंट्रॉइड जो है वो चेंज हो रहा है, बिकॉज सेंट्रॉइड के लिए आपकी जो इक्वेशन है दैट इज सम ऑफ द ओपन लूप पोल्स माइनस सम ऑफ ओपन लूप जीरोस divided by number of open loop poles minus number of open loop zeros, because number of open loop poles और number of open loop zeros तो change नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सम है उसके अंदर यहाँ 0 ऐड हो रहा है और यहाँ पे a ऐड हो रहा है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये आपका सेंट्रॉइड है जो कि अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम का है, तो शिफ्टिंग हो रही है सेंट्रॉइड की बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस a काइंड ऑफ थिंग। ठीक, तो आपका सेंट्रॉइड जो है वो शिफ्ट कर रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट concentrating on the selection of k and a, because we have said कि हमारे पास जो है ये सिस्टम, should we have a 5-10 minutes break so that you should be fresh and start concentrating? Yes sir. इसका जवाब कितनी जल्दी आया है इस बात का? क्या चक्कर है ईशा, सो रहे हैं सारे? Sir, probably everyone is tired. किस वजह से बेटा? सर सुबह भी 2 घंटे की क्लास हुई थी ना। नहीं बेटा, ये तो अब चल रहा है, अब इट्स द 11th वीक ऑफ द सेमेस्टर, अब नाउ दैट्स द पीक टाइम इन एनी सेमेस्टर, कि इस वक्त तो आपको तमाम एनर्जीज जो हैं वो 100% होनी चाहिए, बिकॉज आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं, बट दैट्स द पीक टाइम इन एनी सेमेस्टर। सो ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक, 5-10 मिनट्स ब्रेक, और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। पानी के छट्टे छट्टे मार के आए जो भी सो रहे हैं, because I want this to make you understand. ठीक है, so please. Okay sir. जो भी सो रहे हैं वो जरा थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें।